السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر يزاد فيه رزق المؤمن وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، رمضان المبارک بالکل قریب ہے. شعبان کی 15ویں رات کے بعد عام طور پر رمضان کا ماحول بن جاتا ہے. سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل بڑا مہینہ اور بابرکت مہینہ جسے آقا نے فرمایا وہ رمضان المبارک ہے، اس کو رمضان کریم بھی کہتے ہیں. اور یہ لفظ خود قرآن کریم میں شہر اور رمضان میں یہ لفظ واقع بھی ہوا ہے. بڑا مبارک مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی تھی، جیسے ابھی اس کے بعد آخری جمعہ ہے اور اتوار سے رمضان المبارک کا چاند دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے اتوار پیر کا روزہ ہو جائے. اس حساب سے اس کے بعد آنے والی آخری جمعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسے ماحول میں جو رمضان المبارک کا قریب تھا خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری تاریخوں میں آقا نے ایک خطبہ دیا. یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. اے لوگوں، ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے. ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ کر دیا ہے. پیغمبر نے اپنے الفاظ میں رمضان المبارک کو شہر عظیم کہا. شہر مبارک، بڑا برکت والا مہینہ ہے.
रिवायत के अल्फाज से पता चला कि साल के 12 महीनों में अजमत वाला महीना रमजानुल मुबारक का है। साल के 12 महीनों में बरकत वाला महीना रमजानुल मुबारक का है। शहरुन फीहि लैलतुन खैरुन मिन अल्फ शहरिन, इस महीने में एक रात है जिसकी इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। आगे फरमाते हैं वहुआ शहर सब्र व सब्र सवाबुहु अल जन्नह, रमजान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। सब्र किसे कहते हैं? अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशात पर आदमी कंट्रोल करके नागवार हालात और तलखियों को बर्दाश्त करे, इसको शरीयत की बोलचाल में सब्र कहा जाता है। लुगतन कहते हैं ज़ब्तुन नफ्स अम्मा यकरहुन नुफूस, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना उन तमाम चीजों से जिसको तबीयत नापसंद करती है। और आमतौर पर उलमा ने समझाया अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इंसान का अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, अपने तकाज़ों को दबा लेना और नागवारियां और तलखियां जितनी भी पेश आ जाए इसको बर्दाश्त कर लेना, चाहे रोजों में हो, चाहे तरावी में हो, चाहे सदका खैरात में हो। रमजान भर के 7 मामूलात में से किसी भी अमल में कोई भी नागवार हालात पेश आ जावे, अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह को राजी करने के लिए कितने भी नागवार हालात पेश आ जाए आदमी इसको बर्दाश्त कर ले, इसको सब्र कहते हैं। अगर रमजानुल मुबारक में किसी इंसान को सब्र नसीब हो गया, उसने सब्र सीख लिया और सब्र के तकादों पर अमल कर लिया, साल के 11 महीने में ये इंसान कभी भी बेसब्रा नहीं बनेगा। ये तयशुदा बात है। रमजान जितना अच्छा निकला, साल के 11 महीने इतने अच्छे निकलेंगे। और अगर किसी ने रमजान खराब कर दिया, उसका साल बेकार हो गया। अगर रमजान में बेसब्री हुई, साल के 11 महीने बेसब्रा ही रहेगा। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रिज़ा हासिल करने के लिए अपने नफ्स पर कंट्रोल करके सारी तलखियां और सारे हालात इंसान बर्दाश्त कर ले, इसको सब्र कहा जाता है। कि सब्र का महीना है और किसी ने सब्र कर लिया तो क्या मिलेगा? सवाबुहु अल जन्नह, उसका सीधा जन्नत है। वहुवा शहरुल मुवासात, ये गमखारी का महीना है। इंसान साल के बाद 11 महीने खुशहाल है, खाता पीता है, अच्छा खाता है, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के जज्बात से, नीयत के साथ सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और ख्वाहिशात से रुका रहेगा। आदत तकादा करेगी खाने की, आदत मुतकादी होगी पीने की तरफ, लेकिन इंसान बर्दाश्त करेगा। अब दिल में ख्याल पैदा होगा कि मैंने तो अल्लाह के लिए रोजा रखा और मैं खाने पीने और ख्वाहिशात से नीयत के साथ बतकल्लुफ रुका रहा। क्या गुजरती होगी उन लोगों पर जिनको साल के बाकी 11 महीनों में से अक्सर एक टाइम का या 2 टाइम का खाना मिलता है, या जो फाके से बसर कर लेते हैं, उन लोगों का क्या गुजरता होगा। एक गमखाड़ी पैदा होगी और अल्लाह के दिए हुए सरमाए में से उसको सदका खैरात करने की तौफीक पैदा होगी। गरीबों का दर्द दिल में पैदा होगा, यतीमों का दर्द दिल में पैदा होगा, बेवाओं का, बेआसरों का, भूखों का ख्याल दिल में पैदा होगा। अगर रमजान के महीने में एक मुसलमान के बाबत गमखारी का दायरा और जज्बा पैदा हो गया, साल के 11 महीने में ये इंसान हमेशा गमखारी करता रहेगा। ये सीखने का महीना है, इसमें सब्र सीखा जाता है, इसमें मुवासात सीखी जाती है। आका ने फरमाया
जो रमजानुल मुबारक में अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोजेदारों को इफ्तार कराए, ये चीज हमारे यहां नहीं है। आमतौर पर आपने हरमैन शरीफैन में देखा होगा, आम दिनों में पीर और जुमेरात को असर के बाद दस्तरखान लगते हैं दोनों मस्जिदों में, मस्जिदुल हराम में और मस्जिद नबवी में। अरबों में पीर और जुमेरात के रोजे की बड़ी अहमियत है, और शाम को असर के बाद वो आ जाते हैं असर में और अपने साथ इफ्तारी का सामान ले आते हैं, खुद रोजा इफ्तार करते हैं। और जितने लोग तवाफ में, वहां पर जिक्र में, तिलावत में अपने अपने दस्तरखान पर इनको बिठा करके रोजा इफ्तार कराते हैं। रोजेदारों को भी और जो रोजेदार नहीं है इनको भी अपने साथ अपने दस्तरखान पर बैठ करके रोजा इफ्तार कराते हैं। आका ने फरमाया, जिसने किसी एक रोजेदार को अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोजा इफ्तार करा दिया, उसकी जिंदगी के तमाम गुनाह इफ्तारी की बरकत से खुदा माफ फरमा देते हैं। उसके तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इफ्तार की बरकत से माफ कर देते हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा हर एक इस बात की ताकत नहीं रखता है कि रोजेदार को पेट भर करके खाना खिला दे। इफ्तार कराने का मतलब ये समझे थे कि पेट भर करके खाना खिलाना, और ये वो टाइम था, इब्तिदाई जमाना, जिसमें सहाबाए किराम के हाथ भारी नहीं थे, वह फक्र फाका की जिंदगी गुजारते थे। ऐश व इशरत, राहत और आराम और खाने की फरावानियां नहीं थी। तो मसला पूछ लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजेदार को इफ्तार कराने की फजीलत आप ये बयान करते हैं कि अल्लाह गुनाह माफ फरमा देते हैं और रोजेदार के सवाब के बराबर सवाब इसको मिलता है, उसको अपने रोजे का भी और रोजेदार के रोजे के इफ्तार का सवाब भी पूरा मिलता है, दो रोजे, और रोजेदार के सवाब में से कुछ कम भी नहीं होता है। तो साहबा ने पूछा, क्या हम में से हर एक को तो इसकी ताकत नहीं है, तो क्या ये सवाब पूरा पेट भरकर खिलाने पर मौकूफ है, पूरा पेट भरकर इफ्तारी करा दें? आका ने फरमाया, नहीं। अगर किसी ने लस्सी के घोंट पिला दिए या पानी का एक गिलास से इफ्तार करा दिए या खजूर की चंद पेशी से इफ्तार करा दिए, इस इफ्तारी पर भी इतना बड़ा सवाब मिलेगा कि अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। लिहाजा रमजानुल मुबारक में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि रोजेदारों को इफ्तार कराए। आमतौर पर हम घरों में इफ्तार करते हैं, मसाजिद में कुछ मुसाफिर होते हैं, बाहर से आने वाले लोग होते हैं जिनके खाने पीने के माकूल इंतजाम नहीं होते हैं। ये हजरात इफ्तारी में जो खाना होता है खा लेते हैं, फिर सेहरी तक इसी तरह गुजारा कर लेते हैं। ऐसे मौके पर अगर कोई आदमी किसी नववारिद को देखे या मसाजिद में अपनी इफ्तारी लेकर के रोजेदारों के साथ, इफ्तार करने वालों के साथ इफ्तार कराए, तो मसाजिद का कितना निजाम बेहतर हो सकता है। आका ने फरमाया, किसी ने किसी रोजेदार को इफ्तार करा दिया, उसके गुनाह तमाम खुदा माफ फरमा देते हैं, चाहे चंद खजूर, छुवारे या एक घोंट लस्सी हो या थोड़ा सा पानी हो, इस पर भी ये सवाब अल्लाह बरहमत फरमाते हैं। मालूम ये हुआ, जो आदमी रमजान में अपनी सखावतों को फैलाता है और सखावतों को बढ़ाता है, अल्लाह पाक पूरे साल उसके घर में वुसाअत और बरकत का मामला फरमाते हैं। ये महीने में बंदे तीन किस्म के होते हैं, तो उनके हालात तीन किस्म के हैं। पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मगफिरत के हैं, तीसरे 10 दिन जहन्नम की आग से आजादी के हैं। क्या मतलब? बंदों के हालात तीन किस्म पर होते हैं। एक वो बंदे होते हैं जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नेक हैं, अल्लाह वाले हैं, जिनकी जिंदगी तकवा तहारत नेकी के साथ गुजरती है, लेकिन कभी कभी नफ्स शैतान की शरारत में आकर गुनाह हो जाता है तो तौबा कर लेते हैं,
اور معافی مانگ لیتے ہیں، یہ پہلے طبقے کے لوگ ہیں، تو ان پر رمضان شروع ہی سے رحمت ہے، 10 دن شروع ہی سے رمضان ان کے لیے رحمت ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نیکی کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے، نیکی بھی کر لیتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، بس ایک زندگی گزر رہی ہے، تو وہ 10 دن پورے کر لیتے ہیں اور دوسرے 10 دن کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے پچھلے گناہ کو خدا معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں میں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں بہت کی ہیں، نہ نماز، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد کی پاسداری، بہت بہت گناہ کیے ہیں اور سال بھر بہت تاریکیوں میں گزارا ہے، اندھیروں میں گزارا ہے۔ اب یہ 20 دن کا نصاب جب پورا کر لیتے ہیں تو اللہ وہ پہلے طبقے کے نیک لوگوں کی برکت سے دوسرے طبقے کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس تیسرے طبقے کے انسانوں کے لیے بھی جہنم کی آگ سے آزادی کا خدا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ 3 طبقے ہو گئے۔ اتنا بڑا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یعنی اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کو اس قدر فضیلت حاصل کیوں ہے؟ یعنی رمضان سال کے 12 مہینوں میں عظمت والا کیوں ہے، برکت والا کیوں ہے؟ اس میں گناہوں کی مغفرت، اس مہینے کے اندر اللہ کی خوشنودی، اس میں درجات کی بلندی، اور رمضان سنورنے پر سال کا سنور جانا اور رمضان کے خراب ہونے پر سال کا بگڑ جانا۔ اصل میں رمضان کو یہ فضیلت جو حاصل ہوئی، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور اللہ کی ترتیب یہ ہے، قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں کے قلوب پر نظر ڈالی، قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے حاضر باز پایا، آپ کے قلب اطہر کو منتخب کیا اور سارے نبیوں میں سب سے افضل الانبیاء والمرسلین آقا قرار دے دیے گئے، اس لیے کہ آپ کے قلب اطہر کا انتخاب قرآن کے لیے ہوا۔ اگر حضرت موسیٰ کے قلب اطہر کا انتخاب قرآن کے لیے ہوتا تو موسیٰ افضل الانبیاء والمرسلین ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام افضل الانبیاء والمرسلین ہوتے، عیسیٰ روح اللہ کے قلب اطہر کو اللہ نے منتخب کیا ہوتا تو عیسیٰ روح اللہ افضل الانبیاء والمرسلین ہوتے، ٹھیک اسی طرح نوح، اسی طرح آدم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آقا کو کل کائنات کا خلاصہ اور اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور مقام جو اللہ کی طرف سے ملا، وہ آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا۔ قرآن اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ افضل الانبیاء والمرسلین ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، کس طور پر؟ آقا کے قلب اطہر کو منتخب کیا، عمر شریف کے 40 سال 6 مہینے پورے ہو گئے، غار ہیرا کی خلوتوں کا نصاب پورا ہو گیا، جبریل آسمان سے مکے کی سرزمین میں غار ہیرا جبل نور کی خلوتوں کے نصاب کی تکمیل کے بعد آپ کے قلب اطہر پر جبریل اترتا ہے اور 4 آیتیں قرآن کی آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس جگہ کو جبل نور کہا گیا، حالانکہ غار ہیرا کہتے تھے، جبل نور نورانی پہاڑ، اس کا نام جبل نور اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کا نور، اللہ کا کلام اگر آسمان سے کائنات کی کسی دھرتی کو مس کیا ہے تو وہ جبل نور کی جگہ ہے، اور وہ قلب اطہر محمد الرسول اللہ۔ آپ کا قلب مبارک منتخب، آپ کی ذات منتخب، کائنات کے تمام پہاڑوں میں پہلے نمبر کا پہاڑ
गारे हिरा जिसको जबले नूर कहा गया, जिब्रील अमीन की मारिफत आपके कल्बे अतहर में कुरान भरा गया, आप अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन करार दिए गए। पूरी कायनात में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा यानी हिजाज मुकद्दस पूरी कायनात की तमाम जमीनों में सबसे अफजल जमीन है, सबसे बाबरकत जमीन है, इससे पाकीज़ा सरजमीन कोई नहीं। इसी वजह से दज्जाल मऊदी कुबरा ये हिजाज मुकद्दस की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने आज भी इनकी अजमतों को बाकी रखा है और दज्जाल के वक्त तक खुदा इसकी अजमत को बाकी रखेगा। क्यों? इन्हीं मुकद्दस मकामात में ये कुरान करीम उतरा, इस वजह से ये मकामात मुकद्दस करार दिए गए, इनकी अजमत मुसलमानों पर वाजिब करार दे दी गई। साल में एक रात है जिसकी इबादत 83 बरस से ज्यादा जमाना इबादत में गुजारने के बराबर सवाब है। वो कौन सी रात है? वह लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र को इतनी बड़ी फजीलत क्यों है? इस रात में अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर यकबारगी कुरान करीम नाजिल कर दिया था। वह लैलतुल कद्र थी। रमजान के महीने में 17 तारीख थी, जबले नूर का मकाम था, आका का कल्बे अतहर था और आका मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ। लिहाजा आप अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन कुरान की वजह से, लैलतुल कद्र तमाम रातों में अफजल कुरान की वजह से, इजाज़ मुकद्दस की सरजमीन अफजल कुरान की वजह से। ठीक इसी तरह इंसानों की औलाद में या इंसानों में जिस सीने पर अल्लाह मोहब्बत की नजर डाल देते हैं उसको अपनी किताब अजीज की हिफाजत के लिए पसंद कर लेते हैं। अंबिया और रसूल के बाद कायनात के तमाम इंसानों में सबसे पाकीज़ा इंसान वो होते हैं जिसके कल्ब में, जिसके दिल में अल्लाह ताला की किताब अजीज की हिफाजत हो रही है, जिसको हाफिज कुरान कहा जाता है। इस सीने का इंतखाब अल्लाह ने किया है और जो मुंतखब मिन अल्लाह होता है वो अल्लाह का होता है। जैसे वोट देकर के किसी को मुंतखब किया, अब तो वोट से भी इंतखाब नहीं होता, मशीन मुंतखब करती है। मशीन जिसको मुंतखब कर दे वो मुंतखब हो जाता है। एक टाइम था कि जब से वोट से इंतखाब होता था, अब वो सिलसिला भी दुनिया में खत्म हो चुका। तो फरमाते हैं इंतखाब सिर्फ हाफिज कुरान का अल्लाह पाक खुद करते हैं और उस सीने को अपनी किताब अजीज की हिफाजत के लिए अल्लाह का निजाम चलता है। इसीलिए शुरू साल में मदरसे में 500 बच्चे होते हैं, लेकिन बकरा ईद तक 400 रह जाते हैं, 350 रह जाते हैं, 150 चले जाते हैं। इन 150 के माँ बाप ने भी वही फिक्र की थी जो 350 रह गए उनके माँ बाप ने फिक्र की थी, बल्कि उससे ज्यादा। एक इल्म दुनिया है, एक इल्म आखिरत है, उसमें इंतखाब माँ बाप का है और इसमें इंतखाब रब ताला का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे मुंतखब करते हैं उस पाकीज़ा सीने को अपनी किताब अजीज की हिफाजत के लिए उसको मुंतखब करते हैं। अब यह हाफिज कुरान अंदर में खुदा का कलाम जो महफूज है उसका ध्यान रखे, इस मेहमान का इकराम करे। ये एक मेहमान है जो उसके साथ है, इस मेहमान का इकराम करे और उसका सपोर्ट करे, उसकी रियायत करे और इस कुरान के तकाज़े पूरे करे। तो जिस दिन इसकी फानी आंख बंद होगी और गोरे गोरिस्तान के हवाले किया जाएगा, उस दिन एक हसीन सूरत 14वीं की चांद की तरह चमकता हुआ दमकता हुआ एक इंसान, दूध से ज्यादा सफेद और 14वीं के चांद से ज्यादा चमकदार एक हसीन सूरत बनाकर उसकी कब्र में पहले से मौजूद होगा। लोग जब दफना कर चले जाएंगे तो वो कहेगा अभी साहब घबराओ मत, मैं तेरा मेहमान रहा जिंदगी भर, आज तेरा मेजबान हूं और तू मेरा मेहमान है।
जिंदगी भर मैं तेरा मेहमान था, तूने मेरे तकाजे पूरे किए थे, आज तू मेरा मेहमान और मैं तेरा मेजबान। और मेजबान अपने मेहमान को तकलीफ नहीं पहुंचाता, आने वाले मेहमान को खाना खिलाता है, घर में सुलाता है। बदतरीन है वो इंसान जो मेहमान के साथ बदसलूकी करे। आका ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा वला युज़ि जारा। जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। मोमिन ही मेहमान का इकराम करता है, मेहमान अपनी रोजी लेकर खुद आता है। और बदतरीन है वो इंसान जो अपने मेहमान के साथ बदसलूकी करे। मैं तेरा मेहमान था, तूने अच्छी मेरी मेजबानी की थी, आज सारी कायनात और सारे इलाके खत्म हो चुके, मियां बीवी का इलाका खत्म हो चुका, औलाद का माँ बाप से इलाका खत्म हो चुका, धरती के ऊपर के हालात से तू कनाना का होकर के अब धरती के अंदर तेरा जीवन शुरू हो रहा है। वहां की भी एक जिंदगी है जिसको बरज़ख की जिंदगी कहते हैं। बैनहुमा बरज़खुन, बरज़ख का माना आड़। आड़ का मतलब ये नहीं है कि हम पाक ढाक करके कब्रिस्तान में मुर्दे को दफना देते हैं। अगर पाक खोलकर अंदर भी देखोगे तो उस पर क्या गुजरता है वो आपको पता नहीं चलेगा। बरज़ख अल्लाह के इल्म में उसके हालात हैं, वो दिखाई नहीं देता। अलबत्ता इबरत के तौर पर कभी खुदा ऐसा निजाम कर देता है, अज़ाब या राहत उस पर नुमाया कर देता है। अब बरज़ख की जिंदगी में बैठा है वहां, अब लोग 40 कदम दूर चले गए। अताहु मलकान फयजलिसानिही व युक़अदानिही व यसअलानिही मर रब्बुका मन नबियुका मा दीनुक। हमने लिटा दिया था करवट पर। लोग आमतौर पर चित लिटा देते हैं, खाली चेहरे की तरफ किबले की तरफ चेहरा कर देते हैं, गलत है। हम जैसे जमने पहलू पर सोते हैं इसी तरह जमनी करवट दी जाएगी। कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि किबला रुख मैयत को लिटाने का तरीका यह है कि ये ऊपर का कांधा जो है वो दीवार से लग जाए, बल्कि पूरी पीठ कब्र की दीवार से लगी है, तब जाकर के उसकी करवट सही होगी। लोग इसमें बहुत गलती कर देते हैं, खाली मट्टी डाल दी और अंदर उतरने वाले कोई खानदानी वजाहत, कोई घर का बड़ा, उसको नाम लेकर पुकारते अंदर उतरो। अब वो इतना घबराता है, इतना कपकपाता है कि मैं अंदर कहीं रह जाऊंगा। अब बेचारे को होश हवास तो होते नहीं, अब वो क्या मैयत को सही माने में चित लिटाएगा। लोग वहां खानदानी वजाहत कह करके पुकारते हैं, बड़े भाई को, काका को, मामा को। ये सही तरीका नहीं है। आखिरी मंजिल में इसकी करवट सही हो जाए, इसके जानकार आदमी को अंदर उतारो। आखिरत की मंजिलें तो सही करो, ये तो बहुत जरूरी है। दुनिया तो लाओबालीपन से गुजर गई। जैसे हम दाहिना हाथ दाहिने गाल के नीचे रखकर पूरे पहलू पर सोते हैं, लेकिन कब्र में दाहिना हाथ दाहिने गाल के नीचे नहीं रखा जाएगा, वो तो सीधा रहेगा। अलबत्ता इस पहलू पर उसको सुलाया जाएगा और पूरी इस मैयत की बॉडी किबला की तरफ उसकी तवज्जो की जाएगी। अब वो आ गए, बिठा दिया, बैठा कर दिया। इतने में जब वहां पहुंचते हैं मन रब्बु का मन नबियों का मादीनों का, तो वो हसीन सूरत में कुरान, अल्लाह उसको जिस्म देगा, जिस्म, अजीब किस्म का जिस्म कुरान को देगा। पहले से हाफिज साहब को बेगलाएगा, फुसलाएगा। घबराने का नहीं, इनका काम वो करके चले जाएंगे, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब वो आ जाएंगे तो कहेगा कुरान, सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कहेगा कुरान? कुरान खुद कहता है, ये मेरा मेहमान है, आज मेरे घर में आया है, देखना तुम्हारा काम तुम कर लो, लेकिन मेरे मेहमान को तकलीफ मत पहुंचाना। यानी सवाल जवाब कर लो, लेकिन मेरे मेहमान को तकलीफ मत देना। इससे बड़ा वफाशियार साथी कोई हो सकता है? इससे वफादार और कोई हो सकता है? यही कुरान कायनात के इनकलाब लाने वाली किताब है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं 110 करोड़ को
अगर हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान अगर 30 करोड़ हैं, हम 1.5 अरब हिंदुस्तानी हैं, 120 करोड़ वो हो और 30 करोड़ हम हो, या 110 करोड़ वो हो और 40 करोड़ हम हो, और अल्लाह के इज्जत की कसम खाकर कहते हैं खाली मुसलमान कुरान की तिलावत शुरू कर दे, अल्लाह के इज्जत की कसम कायनात की पूरी काया पलट जाएगी। किसी के मां ने वो छाती से वो दूध नहीं पिया है कि मुसलमान तिलावत करने वाले के रुआब को किसी काफिर या मुशरिक या किसी दुश्मन की जो है तमतमाती हुई निगाह उसके रुख के सामने, उसके चेहरे के सामने टिक सके, ये हो नहीं सकता है। मैं आपको शवाहिदात बताता हूं, सुनो। सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदाई दौरे नबूवत था, मक्के के हर घर में आपका चर्चा था। चर्चे दो तरह के होते हैं, अच्छाई के चर्चे और बुराई के, नए दिन की दावत दी कलमे की, हर घर में चर्चा। एक ऐसा पैदा हुआ है जिसकी दावत और इरशाद पर माँ बाप औलाद में तफरीक, बीवी बच्चों में तफरीक, सारे माबूदों को बुरा भला करके एक अल्लाह की तौहीद का कायल है, ये है वो है। फारूक आजम को एक दिन गुस्सा आया कि आज तो उसका सर कलम कर दो, अलियाज़ुबिल्लाह, न रहे बांस न बजे बंसुरी, किस्सा खत्म कर दूं। बहुत ताकतवर जवान बहादुर थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गुस्सा हुआ कि ये रोजाना की मगजमारी क्या मक्के में, जब उठो तब से उसी का तस्कीरा, सोवो तब से उसी का तस्कीरा, तो आज उसका कामत तमाम कर दो। तलवार ली और आस्ताने नबूवत का कस्द किया। रास्ते में किसी ने देख लिया कि उमर आज नंगी तलवार लेकर के जा रहा है, मसला कुछ गड़बड़ है। साहबी रसूल ने फरमाया कहां का इरादा है? कहा उस साबी, आका को कहते हैं साबी यानी बद्दीन, जो दिन से फिर गया है, नया धर्म ले आया है, उसका काम तमाम कर दूंगा अलियाज़ुबिल्लाह। तो साहबी रसूल ने फरमाया कि पहले तेरे घर का हाल तो तू ठीक कर, तेरे बहन बहने का तो देख, मैंने सुना है वो भी मुसलमान हो गए। अब बजाय आस्ताना नबूवत के जाने के वो गए बहन के घर, फातिमा नाम था। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फातिमा और उनके शौहर सईद को कुरान पढ़ा रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे घर में, वो सबक दे रहे थे, ये सबक सीख रहे थे। वो आए, आकर के बाहर से कुछ खनखनाहट हुई थी, जाकर के बहन को बहुत मारा बगैर पूछे, कोई तहकीक भी नहीं, बहुत मारा, लहू लहान कर दिए, बहनों की बहुत मारा। खून देख करके उमर के दिल में एक सदमा पैदा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। फिर बहन से कहा क्या कर रहे थे बताओ? तो उस वक्त हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर्दे से निकल करके फरमाया तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल अला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहता सरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। अजीब अंदाज से कुरान पढ़ा। उमर, एक अंदाजा करो, जो किसी का सर लेने आया हो वो उस इंसान के कदमों में जा घुसे, खाली इतनी आयत कान में पढ़ने पर आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। मैंने अगली जुमा में कहा था, कश्मीर के 200 से ज्यादा हिंदू पंडितों के कातिलों ने कत्ल करके एक फाइल बनाई और हिंदुस्तान में चलाई। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो बनाई हुई उन्हीं की थी और उनको वापस करनी पड़ी। और हिंदू मुस्लिम नफरत के लिए इस मुल्क में अगर किसी चीज की कमी है तो कुरान की तिलावत की। हम देखते हैं फजर की नमाज में यहां 1.5 सफ होती है, तकरीबन 1.5, हद में हद 2, 1.5-2 सफ में से भी कितने हैं जो रोजाना एक पारा कुरान पढ़ते हो? हर एक अपना हिसाब खुद कर ले। चलो, आम लोगों के हालात एक तरफ, उलमा उफ़ास, मेरे अपनी नॉलेज के मुताबिक मांगरोल शहर में 600 से ज्यादा हाफिज है और मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक
300 से ज्यादा उलमा हैं और 3 दर्जन मुफ्ती है। एक माहौल है घर घर में। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद ताफीजुल कुरान की दरसगाहें हो गई, लेकिन कितने हैं जो फजर में नमाज फजर से पहले अपने मामूलात कुरान की तिलावत के जरिए से पूरे करते हों। अभी रमजान आएगा तो शाबान की 15वीं तारीख से हुफ्फाज कुरान देखना शुरू करते हैं। हम इनसे मन्नत और सजा के साथ कहते हैं कि भाई देखो, ये कुरान रोजाना तिलावत की किताब है, रोजाना तिलावत। अगर मुल्क हिंदुस्तान से फितनों का खात्मा करना है तो 30 करोड़ मुसलमान में से अगर यूं समझो कि 10 करोड़ अनपढ़ निकाल दे और 20 करोड़ कुरान के पढ़े लिखे अगर शुमार कर लिए जाए, या 10 करोड़ 1/3 कुरान के पढ़े हुए शुमार किए जाए और ये महीने में 3 कुरान खत्म कर दे, अल्लाह के इज्जत की कसम हिंदुस्तान पूरा अरबस्तान में तब्दील हो जाए। कुरान वो चीज है। फारूक आजम इन आयत को सुनकर वही तलवार जिसे आका का सर लेने गए थे, उसी तलवार को बयान में रखकर दर अक़दस रसूल पर हाजिर होकर कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की तिलावत के सुनने ने फारूक आजम को, जो कातिल बनकर के गया था, मगलूब बनकर के हाजिर हो गया। तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी बहुत बड़ा शायर था अरब में। उसके शायर अदब और उसके अदबी सुकून पर अरब अपनी कलेजे झुका देते थे। मक्के में आया, अरब के बड़े बड़े सरदार जमा हो गए। कहा यहां एक आदमी है जो साबी और बद्दीन हो चुका है, उसकी बातों में मत आना, मुखालफत। कहा कि इतना बड़ा तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी जैसा इंसान अगर इस्लाम कबूल कर लेगा तो मोहम्मद की तक़वियत हो जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहकाया, इनसे दूर रहना, इनसे दूर रहना। तुफैल खुद कहते हैं, मैं अपने कानों में रुई डाल देता था, रुई, डबल रुई डाल देता था, और आंखों पर भी पर्दा डाल देता था, न उसको देखूं न उसको सुनूं। लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह तकदीर का मालिक है। एक दिन आका नमाज फजर में हरम के अंदर कुरान पढ़ रहे थे, नमाज में कुरान पढ़ रहे थे। तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी वहां से गुजरा और कान में जब कुरान पढ़ा, अंदाजा लगाओ सारा कुरैश मुखालफत में समझा रहा है और कानों में रुई डाली हुई है और चेहरे पर पर्दा कि इनको देखे नहीं, खाली कुरान सुनना था। तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी आका की तिलावत के बाद आका के कदम ब कदम दर अक़दस रसूल हाजिर होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जुबैर इब्न मुतइम इब्न अदी इब्न अल-खयार, अरब का एक मशहूर तरीन इंसान। जुबैर इब्न मुतइम इब्न अदी इब्न अल-खयार बदर में मक्के से आए थे लड़ने के लिए सनादिद कुरैश, और 70 का कत्ल हुआ था, 70 कैद हुए थे। इनके 70 कैदियों में से कुछ को या सबको आका के दरे अक़दस पर हाजिर होकर के सिफारिश के लिए आया था कि हमारे कैदियों को छोड़ा जाए। अंदाजा लगाया, जुबैर इब्न मुतइम इब्न अदी इब्न अल-खयार 70 सनादिद कुरैश जो कैद में थे, इनकी सिफारिश पूरे कुरैश की तरफ से एक मुअज़्ज़ज़ इंसान बनकर, उसकी जुबान में तासीर थी, उसकी सोच बहुत गहरी थी, उसकी फितरत बहुत सलीम थी। उसकी जिंदगी का खास किरदार क्या था? वो सलीमुत तबा था। और उसकी जिंदगी का खास किरदार क्या था? हमेशा मजलूम की फेवर करता था, जालिम का विरोधी था। ये बात खास समझने के। बुत का पुजारी था, मुशरिक था, जाहिल था, लेकिन 2 सिफतों का मालिक था, सलीमुत तबा, दिल बहुत सलामत, और जालिमों के खिलाफ मजलूमों की हेल्प करता था। हम सोचे किसी के जुल्म के नतीजे में कोई जेलों की सलाखों में सजा भुगते, किसी के जुल्म के नतीजे में किसी का खेत बिकाई हो जाए, किसी के जुल्म के नतीजे में किसी के जानवर पर जुल्म किया जाए, किसी के जुल्म के नतीजे में
किसी से पैसे पड़वाए जाए, किसी के जुल्म के नतीजे में किसी की इज्जत पर हमला किया जाए, जालिमों की कोई कमी नहीं, हर मैदान में मिलेंगे। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, महकमा के आगे पीछे चलने वाले एक बड़ी तादाद है, बड़ी फहरिस्त है। याद रखो, जिस जमीन में जुल्म होता है, अल्लाह के इज्जत की कसम, वहां आसमान से बारिश का छींटा भी बरसता नहीं है। पूरी दुनिया इंतहाई मजालिम का शिकार है, क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। पूरा अदलिया, अब तो हम 90%, 90 पॉइंट यूं भी नहीं कह सकते, 100% पूरा अदलिया जुल्म का शिकार, और जालिम को कैफरे किरदार पर पहुंचाने के लिए और मजलूम को इंतहाई हालत पैदा करने के लिए जो मुसलमान वकला का रोल है, वो हिंदू का नहीं है। हम उस समाज में रह रहे हैं, हम उस कौम में रह रहे हैं, हम उस मुआशरे के साथी और फर्द हैं। क्या हो रहा है? जुल्म की तारे जितनी तेज होगी, मुसलमान की कटाई होगी, मुसलमानों की जलाई होगी, और मुसलमानों की आबरू का नीलाम होगा। रात दिन फैसले हमारे विरोध, वो सलीम उत्तबा था, जुल्म का खिलाफ था, मजलूम का मददगार था, जालिम की मदद नहीं करता था। आया आका की खिदमत में, उस वक्त वत्तूरी व किताबिन मस्तूर फी रब्किन मंसूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ यौम तमूरु स्समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा। ये आयतें उसके कान में पड़ती है। जुबैर इब्न मुतइम इब्न अदी इब्न अल खयार फौरन हल्का बगो से इस्लाम हो जाता है, जो अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए आका के दर अक़दस पर हाजिर हुआ। मैंने इख्तिसार में 3 नाम पेश किए, एक उमर का, एक तुफैल का, और एक तीसरे नंबर के अंदर जुबैर का। 3 नाम मैंने पेश किए। एक है जुबैर, जुबैर जा के साथ, जो असराए मुबश्शरा में से हैं, और एक जुबैर है जो जीम के साथ हैं। ये जुबैर इब्न मुतइम इब्न अदी इब्न अल खयार था, जिनके हालात मैंने जिक्र किए। ये रमजान का महीना आ रहा है, कोशिश इस बात की करनी चाहिए, मैंने अगली मजलिस में भी जिक्र किया था कि 15वीं शाबान से लेकर रमजान तक अगर 2 पारे पढ़ने का मामूल बन जावे तो भी रमजान के आते आते एक कुरान खत्म हो जाएगा। देखो, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, खाली 3 महीने रोजाना के 3 पारे कुरान के पढ़ करके देख लो, खाली 3 महीने, अल्लाह की कसम, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, फिर खुदा की कसम, एक भी रुका हुआ मसला, अटका हुआ मसला हल होए बगैर रहे, ये हो नहीं सकता। कोई भी परेशानी हो, इसका खात्मा न हो, ये हो नहीं सकता। हम कसम खा करके कहते हैं, अल्लाह की किताब में वो तासीर, पढ़ो तो सही, घरों में रिवाज तो दो उसका। हमारे बच्चों को भी मुकल्लफ करो, मदरसे से बच्चे पढ़कर आए, अब 2 महीना घर पर रहकर आते हैं, इनके चेहरे देखने जैसे भी नहीं होते, ऐसे काले भद्दे चेहरे कि देखो तो भी यूं लगे कि भाई तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई, कभी भी घर में कुरान को हाथ नहीं। अब वाली क्या कहते हैं, मदरसे से आववा पछी कोई भी कुरान ने हाथ लगानो ज नहीं। अब देखो, घर में माहौल नहीं है और माहौल का असर पड़ता है। अब बेचारा वो लेकर बैठे भी तो अकेला कैसे बैठे, उसके साथ कोई बैठने वाला भी हो। पहले माँ बाप करते थे, बेटा सुसु मदरसे पढ़ने आवज बने संभड़ाओ, तो पहले माँ बाप ऐसे होते। हम भी खुद बच्चे थे, जब पढ़ते थे मकतब में, तुम्हारे दादा लेकर के बैठ जाते थे और कहते थे कि जो तुम मदरसे में पढ़ा है वो मुझे सुनाओ भला। रोजाना सुनते थे, और कभी भी बड़ी रातों के अंदर सोने नहीं देते थे। साल की बड़ी रातों के अंदर हमारे बड़े लोग कभी भी अपनी छोटी औलादों को घर में रात को सोने नहीं देते थे। और आज हमारे जिम्मेदार बड़ी रातों में बाजार की जीनत बने हैं, तो नई नस्ल क्या करेगी? जरूरत है इस मर्तबा तो कुछ एहसास दिल में पैदा हो जाए, यानी इस मर्तबा का रमजान अगले रमजानों से कुछ चेंज तो हो जावे। सारे रुके हुए कारोबार शुरू हो जाएंगे, सारी बेबरकतियां खत्म हो जाएंगी, दरख्तों में से रोग चले जाएंगे,
बेबरकतियां खत्म हो जाएगी। एक मर्तबा करने की चीज है, अमली जामा पहनाने की चीज है, जो हमारी जिंदगी के तजर्बात हैं, जो हमारी जिंदगी के मुशाहदात हैं, वो हम आपकी खिदमत के अंदर पेश करते हैं। अगरचे तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर कोई बात नहीं बनती, अल्लाह के हुक्म पर बात बनती है। तिलावत की आदत बनाए। बस मैंने ये मजमून इसलिए मुंतखब किया था, हाफिज कुरान के सीने को खुदा ने मुंतखब किया। क्या करेंगे हम? अभी से सोच, हमारे महल्ले की मस्जिद में अच्छे से अच्छा कुरान पढ़ा जाता है। हमारे हाफिज साहब के साथ पहली ही सफ में कोशिश करके अजान से पहले आ जाएंगे, कोई बैठे हुए को हटाएंगे नहीं। अब रमजान में धमा कचड़ी बहुत होती है, किसी को ऐसी फाउता देने, ऐसी धनाधन, अब इसमें भी लड़ाइयां। अब कोई पहली सफ में बैठने का आदी है, कभी ताखिर हो गई, दूसरा आ गया तो हमारी रोजनी जगह चाहिए ना जो है। ये सारी चीजें इस्लाम में नहीं। जहां जगह मिली वो अल्लाह का घर हमारे लिए है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। कोशिश इस बात की करे कि बेहतरीन कुरान जहां पढ़ा जाता हो, सारे ही हुफ़ाज़ बेहतरीन ही पढ़ते हैं। अब नफ्स शैतान क्या करेगा? ओली मस्जिद में 5 मिनट वेली तरावी पूरी थी तो कालियां, પછી आली मस्जिद में 7 मिनट वेली तरावी पूरी थी गई परम दिया। अब ये नफ्स और शैतान जमने नहीं देगा, और रोजाना कैलकुलेट होता है किस मस्जिद में जल्दी हुई। ये नफ्स और शैतान इस मियाद तक पहुंचने नहीं देगा। इसीलिए कसमें खा लो कि मेरे हाफिज से अच्छा कोई कुरान पढ़ता ही नहीं है। एक दिमाग बनाओ, और मेरे हाफिज के पीछे मैंने बिस्मिल्लाह की तो वन्नास भी मुझे करना है। जब इसके पीछे मैंने बिस्मिल्लाह शुरू कर दी तो इसी के पीछे मुझे वन्नास भी करना है। एक मर्तबा करके तो देखो, अल्लाह की कसम, साल के 11 महीने जब तक तुम वो लज्जत महसूस नहीं करोगे तब तक खुदा तुम्हें मौत भी नहीं देगा। कुरान की तिलावत की लज्जत जब तक महसूस नहीं करोगे, तिलावत या सुनने का, तब तक खुदा मौत भी नहीं देगा। ये वो किताब अजीज है जिसकी हिफाजत के लिए तिलावत बहुत जरूरी है। इस मुल्क के पेचीदा हालात को बदलने के लिए कोई भी सियासी पार्टी हल नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि ये फंसाने के लिए है, हल नहीं है। कोई सियासी पार्टी हल नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा हल सिर्फ कुरान की तिलावत में। एक मर्तबा करके देखने की चीज है। कोई समाज, कोई मुआशरा, कोई शख्सियत कभी भी हालात को बेहतर नहीं बना सकते। हालात को बेहतर बनाने वाली जात अल्लाह की है, और जब उसका कलाम, उसकी जात अक़दस से निकला हुआ उसका कलाम जब उसकी तिलावत की जाएगी, उसके गीत गाए जाएंगे, उसकी तारीफ की जाएगी और उसकी तारीफ के बोल बोले जाएंगे, वो खुश हो जाएगा और अपने गजब को अपनी रहमत में बदल देगा। एक इंसान जब किसी की बुराई करता है नफरत होती है, और जब इंसान किसी की तारीफ करता है और किसी को पता चलता है तो पीछे से हदिये बेचता है, क्यों? उसने मेरी तारीफ की। ये इंसानों का मिजाज है। और अगर पता चले कि फलाना मेरी बुराई करता है तो अगर ताल्लुकात है तो भी तोड़ देता है। जो आदमी हमारे साथ इतना गलत व्यवहार करे, हम उसके साथ हुस्न सलूकी करें, तो क्या हमारा अल्लाह पसंद नहीं करेगा कि मेरे बंदे मेरी तारीफ करें? और जब बंदे तारीफ करना बंद कर दे फिर वो अल्लाह रहमत कैसे बरसाएगा उस पर? लिहाजा नेकियों के कमाने का सीजन आ गया। आइंदा जुमा आखिरी जुमा है, इतवार पीर से रमजान शुरू हो रहा है। उसकी तैयारी के लिए मैंने कुरान करीम की आयात और अहादीस पढ़कर के आप हजरात की खिदमत में पेश की। अल्लाह ताला हम सबको रमजान का एहतराम और रमजान के मामूलात को भरपूर अदा करने की तौफीक अता फरमावे। मदरसा मोहम्मदिया जामनगर में है, एक दारुल हमारे इलाके का है जो पुराना मदरसा है, वहां से चंदे के सिलसिले में उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से। यह हाफिज साहब का जो नाबीना थे हाफिज याकूब साहब, उनका कायम करदा ये मदरसा था, वो अल्लाह की रहमत में चले गए। देखो एक नाबीना इंसान से खुदा कैसा काम लेता है। अभी श्रीनगर मदरसे में 17 लड़के हाफिज हुए, इसमें एक 13 साल का लड़का हाफिज हुआ। उसको कुछ भी भान नहीं पड़ती है, यानी कोई भी तरीका ही जिंदगी उसके पास नहीं। दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि इस छोटे बच्चे को अगर उसके घर में 10 तोला सोना हो तो उसका बाप या माँ जिसके रहम से ये पैदा हुआ, इसको उस लोकर की चाबी या उसकी हिफाजत करके ये नहीं कहेगा हम जा रहे हैं तुम ये चाबी रखना और तुम हिफाजत करना।
भरोसा उस पर नहीं आएगा। लेकिन वो अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान कि अपना पूरा कुरान उसकी सीने में भर दिया और इतनी बड़ी दौलत उसको दे दी। एक तालिब इल्म का बाप इंतकाल कर गया कोरोना में। 4 साल से मेहनत करता था, आले रसूल था हाफिज होने के लिए। फिर जब बाप जवारे रहमत खुदाबंदी में चला गया, लेकिन मां का किरदार बड़ा हसीन था। एक भाई ने एक बहन, मां ने कहा किसी भी तरीके से इसको हाफिज बनाना है। जब बाप का साया उठ जाता है, अब कमाई के मसले, धंधों के मसले, फिर हालात ऐसे, खानदान में जो चचा था यानी मरने वाले का भाई, उसने भी हाथ उठा लिए। अब घर चलने के मसले, खानदान चलाने के मसले, 4 जीव के मसले। लेकिन मां की एक फिक्र थी कि मुझे इसको हाफिज बनाना है, का किसी तरीके से इसको ले जाओ, पूरा करा दो। जिस दिन पूरा हुआ उस दिन बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसू बहे कि ये मां है जिसने अपने औलाद की तकमील कराई, और जिस दिन पूरा हुआ होगा उसके बाप पर क्या करोड़ों रहमतें बरस रही होगी, वो तो वहां जाने के बाद उसको पता चला होगा। ये किरदार होता है माँ बाप का कि माँ बाप इस्लाह करे। मैं आखिरी बात ये कहता हूं, हर घर में आज से 10 मिनट अपनी औलाद को लेकर बैठो, खाली खैरियत तो पूछो। आज हमारे जवानों के बाल तो देखो, वांदरा भी शर्माता है। मैं अपनी भाषा में कहूं ना, बंदर भी शर्माता है न हंसता है। आज हमारी औलादों के हालात तो देखो, इनकी सोहबतें किन किन लोगों के साथ। खाली 10 मिनट बैठकर घर का वडील एक दूसरे की खैरियत तो पूछे ना, साथ में बैठे तो सही। बहुत घर ऐसे हैं कि माँ बाप औलाद को महीनों तक देखती नहीं है, और रात को 2 बजे सोने आता है, ये सुबह में निकल जाता है, वो 11 बजे उठता है। पूरा माशरा इंतहाई चेंज आ गया, और ये चेंज इतनी खतरनाक है। औलाद नाजायज कमाइयां करते हैं, औलाद किसी का हक मार कर हड़प करके आते हैं। उन घरों में सुकून कैसे पैदा होगा? खाली 10 मिनट मिलजुल करके बैठो तो सही। मैं आपको बताऊं, हमारी मस्जिदवार जमात का उसूल यह है कि 10 मिनट बैठकर मस्जिदवार जमात मोहल्ले के सिलसिले में गौर करती है, और पूरे मोहल्ले में दीन लाने के लिए ये मस्जिद का अमल है। तो क्या मेरे घर को सुकून का माहौल बनाने के लिए घर के वडील को 10 मिनट बैठना नहीं पड़ेगा? ये फर्जे ऐन है, ये तो सुन्नत है, वो फर्जे ऐन है। फर्जे ऐन छूटेगा, अल्लाह के यहां पकड़ होगी। वडील की जिम्मेदारी है बहुओं को लेकर। आमतौर पर माशरे में बहू को कोई मकाम नहीं, काम वाली समझा जाता है, और अपनी बेटी को अगर ससुराल में नुकसान या दुख पहुंचा तो फिर वो बेटी है, और दूसरी की बेटी घर में आती है तो वो बहू बन करके आती है। क्या हो रहा है घरों में? खाली 10 मिनट का मसला है जिसमें सब मेंबर आ जावे और बैठ करके खाली मुज़ाकरा तो करें, दिन भर की कैफियत तो पूछे, हिसाब न लें। दिन कैसा रहा, क्या काम किया, क्या नहीं किया, आइंदा क्या करना है, खाली 10 मिनट का मसला है। देखो घरों में ऑटोमेटिक माहौल बनना शुरू हो जाएगा। वहां धीरे से एक बात रख दें कि भाई कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, यासीन पढ़े बगैर घर से नहीं निकलना है। यासीन तो पढ़नी है, यासीन पढ़े बगैर घर से नहीं निकलना है। मस्जिद में पढ़ी तो भी किसी से मालूम कर ले, इमाम साहब या मेरे बेटे ने वहां यासीन पढ़ी थी। ये हिंदुस्तान में दीन को, इस्लाम को और निजाम को बचाने के लिए ये तरबियती निजाम होगा तो बचेगा। आजकल पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों के लिए इस्लामिक स्कूल के निजाम उलमा ने शुरू कर दिए। हिजाब का मसला आया, अब बच्चियों को पर्दा पहन करके स्कूल में एग्जाम नहीं देने जाते, स्कूल में दाखिला नहीं देते गैर मुस्लिम स्कूल। अब मुसलमानों ने, उलमा ने कोशिश की, महंगी महंगी जमीनें खरीद रहे हैं, बच्चियों के इस्लामिक स्कूल कायम कर रहे हैं कि बच्चियों को इस्लामिक स्कूल के अंदर इस्लामी तालीम दी जाए और इसके साथ इसको दुनियावी तालीम दी जाए। कोई भी हाल मुसलमान के लिए रहमत के बगैर खाली नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दूस इस मुल्क में इस्लाम की, मुसलमानों की और शायर इस्लाम की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला अपने मेहमान महीने की, अजमत वाले महीने की, बरकत वाले महीने की कमा हक कहू कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐलान ये है
آئندہ بدھ کے دن مغرب کی نماز کے بعد فوراً دار ارقم میں محفل حسن قرات کے عنوان سے بڑے بڑے قرائے کرام کو بلایا گیا ہے. قاری صدیق صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب، یہ حضرات وہاں تلاوت قرآن یعنی قرات کے ماہرین محفل ہے قرات کی. تمام لوگوں کو بدھ کے دن مغرب کی نماز کے بعد شرکت کی عمومی دعوت دی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك من خير كله ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كله ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا حنان يا منان انفعنا منك بنفحة خير تغننا بها عمن سواك يا بديء ويا مبدئ ويا معيد يا أرحم الراحمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل. اللهم انصرنا بما نصرت به الرسل واحفظنا بما حفظت به الذكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم برحمتك.